سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں اپنی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ آج کا موضوع ہے یسوع کا صلیب پر مرنا۔ یسوع نے ایمانداروں کے گناہوں کی سزا کو اپنے اوپر لینے کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی۔ بہت سارے لوگوں نے تمام تاریخی شواہد کے ہوتے ہوئے بھی صلیب پر یسوع مسیح کی موت اور مردوں میں سے اس کے جی اٹھنے پر شک کیا ہے۔ کلام مقدس وضاحت کرتا ہے کہ خداوند یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر مرا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب آیت نمبر 3 تا 4 میں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ کلام مقدس اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ گناہ سے مبرا یسوع نے صلیب پر اپنا خون بہایا اور اپنی جان دی تاکہ وہ ایمان لانے والے گناہ گاروں کی سزا کی قیمت ادا کر سکے۔ آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں کہ خداوند یسوع مسیح کی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہی کیوں کسی گناہ گار کے لیے آسمان پر جانے کی واحد راہ مہیا کرتا ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یقیناً آپ نے یہ سنا ہے، آپ نے یہ پڑھا بھی ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے انسان اور اس زمین کو بالکل کامل حالت میں تخلیق کیا تھا، لیکن آدم اور حوا شیطان کے بہکاوے میں آ کر آزمائش میں پڑ گئے اور انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ آدم کے اس پہلے گناہ کے وقت سے لے کر گناہ نے انسانی نسل کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ ہر ایک انسان گناہ کرنے کا مرتکب ہے۔ رومیو 3 باب آیت نمبر 23 میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ گناہ بہت بڑے بڑے برے فعل جیسے کہ قتل، کفر وغیرہ ہی نہیں، بلکہ اس میں جھوٹ بولنا، شہوت پرستی اور چوری کرنا بھی شامل ہے۔ حتیٰ کہ دولت سے پیار کرنا اور اپنے دشمنوں تک سے نفرت کرنا بھی بائبل مقدس کے مطابق گناہ ہے۔ ہمارے اچھے کام پاک ترین خدا کے خلاف کیے گئے گناہ کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے اگر اس کی پاکیزگی کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے۔ یسایہ 64 باب آیت نمبر 6 میں لکھا ہے، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے۔ اگر اس کی پاکیزگی کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے تو خدا کے خلاف گناہ کرنے کی بدولت ہم اس کی طرف سے سزا پانے کے مستحق ہیں۔ وہ قاضی یا منصف جو قانون کو توڑنے والے کو معاف کر دیتا ہے، وہ کوئی اچھا منصف نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح خدا بھی کسی گناہ کو نظر انداز نہیں کرے گا، کیونکہ وہ راست منصف، وہ اپنے راست قہر کو گناہ گاروں کے خلاف انڈیلتا ہے۔ رومیو 2 باب پہلی سے 11 آیت تک آپ ضرور مطالعہ کیجئے گا تو آپ جان پائیں گے ایمان نہ لانے والے گناہ گار اپنے گناہوں کی قیمت جہنم میں ابدی سزا پا کر ادا کریں گے۔ رومیو 6 باب کی آیت نمبر 23 میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خدا کا وعدہ ایک بے گناہ سے مبرا ذات کی موت کا تقاضا کرتا ہے۔ اگرچہ خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے باہر نکال دیا تھا، لیکن اس نے انہیں نجات اور آسمان کی امید دی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ عورت کی نسل یعنی یسوع مسیح کو بھیجے گا جو ابلیس پر فتح پائے گا۔ پیدائش 3 باب کی آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اس وقت تک انسان بے گناہ بروں کو اپنی اس سزا کی قربانی کے نعم البدل کے طور پر قربان کریں گے۔ انسان کی طرف سے جانوروں کی قربانی ایک حلیم اقرار کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کا گناہ موت کا تقاضا کرتا ہے، اور یوں انسان مستقبل میں خدا کے بیٹے یسوع پر اپنا ایمان کا اظہار بھی کرتا ہے، جو ایمانداروں کے گناہوں کی قیمت ایک ہی بار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادا کر دے گا۔ بائبل مقدس میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے نبیوں نے یسوع کی موت کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھی۔ یسایہ 53 باب پہلی سے 12 آیت لکھا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔
हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फेरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वह अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म न किया और उसके मुंह में हरगिज छल न था, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमकीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वह अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी ही जान का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफात की। नबी ने आने वाले मसीहा को एक ऐसे बर्रे के साथ तशबीह दी थी जो दूसरों के गुनाहों की खातिर ज़बह किया गया हो। कई सदियों के बाद खुदावंद यीशु ने यशायाह नबी की इस नबूवत को पूरा कर दिया। अगरचे खुदावंद यीशु अबदियत से खुदा बाप के साथ था, लेकिन खुदा ने बेटे को इस जमीन पर भेजा। यूहन्ना 3 बाब आयत नंबर 16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। यीशु वो मौदा मसीहा है जिसके बारे में कहा गया था कि वो औरत की नस्ल में से आएगा। वो इंसानी जिस्म में एक कंवारी के यहाँ पैदा हुआ। खुदा ने खुद इस बात की गवाही दी कि यीशु उसका इकलौता बेटा है। यीशु को देखकर यूहन्ना अस्तबागी जो कि खुदा का नबी था, उसने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। कफारे के बर्रे के तौर पर जहान का गुनाह उठा ले जाने के लिए यीशु के लिए मरना जरूरी था। वो गुनाह की सजा मौत को अपने ऊपर लेने के लिए इस दुनिया में आया। यीशु ने खुद बहुत दफा अपनी मौत के बारे में पेशगोइयां की थी। लूका 18 बाब आयत नंबर 31-33 में लिखा है, फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक में पूरी होंगी, क्योंकि वो गैर कौम वालों के हवाला किया जाएगा और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। खुदा ने यीशु को गुनाह के लिए कुर्बान किया। खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान बहुत बड़े बड़े हजूम शिफा और तालीम पाने के लिए उसके पीछे आते थे, लेकिन मजहबी क़यादत उससे कीना रखती थी। उन्होंने उसको गिरफ्तार किया और उस पर इस वजह से कुफर का इल्जाम लगाया कि वो अपने आप को खुदा का बेटा कहता था। लूका 22 बाब आयत नंबर 70 में लिखा है, इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूँ। फिर हुजूम ने उसके बारे में चीख चीख कर कहा कि इसे सलीब दो। सिपाहियों ने उसे पकड़कर मारा पीटा, उसको ठट्ठों में उड़ाया और फिर उसको मसलूब किया। सलीब पर यीशु ने गुनाह की सजा को अपने ऊपर ले लिया। अपनी मौत के वक्त उसने कहा, यूहन्ना 19 बाब आयत नंबर 30 में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। यीशु ने खुदा के कामल बर्रे के तौर पर अपनी जान देते हुए गुनाह की सजा की अदायगी एक ही बार मुकम्मल तौर पर कर दी। जिस तरह यशायाह ने नबूवत की थी, यीशु को 2 बदकारों के दरमियान मसलूब किया गया और उसको एक अमीर शख्स की कब्र में दफन किया गया, लेकिन यीशु उस कब्र के अंदर ही नहीं रहा। उसके बारे में नबूवत की गई थी। वो मौत और कब्र पर अपनी फतह का शादियाना बजाते हुए मुर्दों में से जी उठा। यीशु के लिए मरना क्यों जरूरी था? यीशु ने ईमान लाने वाले गुनाहगारों के लिए अपनी जान दी। हम अपने किसी काम की बदौलत फरदौस यानी खुदा की हजूरी में नहीं जा सकते। हमेशा याद रखें कि खुदा पाक तरीन जात है और वो कभी भी गुनाह को बेसजा जाने नहीं देगा। अगर हम खुद अपनी सजा भुगतें तो हम अपनी अबदियत जहन्नम के शोलों में हमेशा हमेशा के लिए जलते हुए गुजारेंगे। लेकिन खुदा ने ईमानदारों के कामल नेमल बदल के तौर पर यीशु को कुर्बान किया। रोमियो 5 बाब
6-12 आयत, 18-21 आयत। कलाम मुकद्दस फरमाता है, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तौफ़ील से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर ज़िंदगी पाएंगे। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फर्मा बरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत आ मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिया से बादशाही करे। यीशु अब्दी जिंदगी के हसूल के वाहिद रास्ते की फराहमी के लिए कुर्बान हुआ। अगर खुदा आप पर आपके गुनाहों को जाहिर कर रहा है और आप पर खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत को भी अयां कर रहा है, तो फिर तौबा करें, अपने गुनाहों को तर्क करें और अपने तरीके से खुदा को राजी करने की कोशिश को भी तर्क करें। आप खुद से निजात के मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल की इस सच्चाई पर ईमान लाएं जो आपको बताती है कि यीशु कौन है और उसने ईमानदारों की निजात के लिए क्या किया है। गुनाहों से निजात पाने के लिए यीशु पर अपने शख्सी निजात दहिंदा और अपनी जिंदगी के मालिक के तौर पर ईमान लाएं। वो अपने कलाम यानी बाइबल मुकद्दस के वसीला से आपकी रहनुमाई करेगा और आपको कुव्वत भी बख्शेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।